Hi, my dear students. How are you? Welcome to the session. So, when we talk about IP MAT, there are a lot of questions which come from vocabulary, right? और वो टेस्ट करते हैं स्टूडेंट्स को कि क्या उनको क्लोजली रिजेंबलिंग वर्ड्स में डिफरेंस समझ में आता है नहीं आता. सो वी कॉल देम कंफ्यूजिंग वर्ड्स. दे कैन बी होमोनिम्स, राइट, where there are similar sounding words and there is slight difference, but you need to know these words, and we are learning some sets which have got very high possibility to be tested in IP Math. So going to be a quick video, but it's my sincere request that please do retain these words, revise them before your exam, and you'll find them super helpful, right? So let's get started. My name is Juhi Narula. तो जो हमारा पहला सेट ऑफ वर्ड्स है दैट वी शुड नो द डिफरेंस बिटवीन एम्बिगुअस एंड एम्बिवलेंट, राइट? सो एम्बिगुअस इज समथिंग विच इज अनक्लियर, राइट? अब अगर आप किसके आगे अन लगा दोगे और आप वर्ड बना दोगे अनएम्बिगुअस, तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा समथिंग विच इज क्लियर, ठीक है? सो व्हेन वी से अनएम्बिगुअस, this is the opposite word, right? So something which is confusing, which can have various interpretations, so आप बोलते हो ambiguous है ये, right? और अगर आप बोलते हो unambiguous, मतलब something which is very clear. इसका जो कंफ्यूजिंग वर्ड होता है इसके साथ जो यूज करते हैं दैट इज एम्बीवलेंट. एम्बीवलेंट इज जहां पे आपको मिक्स्ड इमोशंस हो रहे हैं. मतलब आप इसको ऐसे एसोसिएट करिए कि आपका एक यंगर ब्रदर है जो बोर्डिंग जा रहा है. बोर्डिंग इज वेरी फेमस, राइट? इज गॉट इनटू द टॉप नॉच बोर्डिंग स्कूल ऑफ द कंट्री. तो आप बहुत एक्साइटेड हो, यू आर वेरी हैप्पी दैट ही इज गोइंग टू हैव अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस देयर एंड ही इज गॉट दिस ग्रेट अपॉर्चुनिटी, राइट? सो देयर इज अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस, but at the same time he has to go far from you, so you are slightly sad also. तो जो आपके इमोशंस है वो एम्बिवलेंट है, आपको मिक्स फीलिंग आ रही है, राइट? सो एम्बिगुअस एंड एम्बिवलेंट, राइट? सो डोंट गेट कंफ्यूज, क्योंकि कई बार मैं आपको भी दिखाऊंगी भी कि किस तरीके से क्वेश्चंस में आपको क्लोज चॉइसेस मिल जाती हैं जिसकी वजह से कंफ्यूजन होता है, ठीक है? Now there is this word adjure and abjure. अब आप देखोगे there is just a slight difference in the spelling, और कई बार क्योंकि हम rush में होते हैं while we are solving the questions, we miss on these little details. So when we talk about the word adjure, that means to make a sincere request. जैसे मैं बोलूँ I adjure my students to work sincerely for next 2 months, right? So I'm making a sincere request, an earnest request. And abjure का मतलब होता है to leave. जैसे the सक्सेसर एब्ज्योर्ड द थ्रोन, ठीक है? सो एब्ज्योर्ड मतलब रिनाउंस कर दिया, डिसोन कर दिया. जैसे गौतम बुद्धा ने क्या किया था? डिनाउंस कर दिया था अपने थ्रोन को, सेड आई डोंट वांट टू बी द रूलर, राइट? सो दैट्स व्हाट यू कॉल abjuring. So please see, there's just a small difference, but the meaning is absolutely different. आप रश में होते हो तो आप एक जैसा ही पढ़ जाते हो दोनों को, और कई बार आपको प्रेशर में समझ में नहीं आता कि is there any difference. So these are slight details that are tested in the exam, because आप बहुत intense pressure पे हो तो इस तरह की गलतियां आप कर देते हो. If you know the words, it is a high possibility that you will be able to avoid such mistakes, right? So when we talk about adjure, it means you are making a sincere request, and abjure is to disown, to renounce. Coming to the next word, affect and effect. आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम दो, कहीं ना कहीं तो आपको ये either in the PYQ or the actual exam दिखेगा ही. It's very important. I don't know, there's a fetish of this test, this set being tested in the exams, and almost all the exams which have got vocabulary, somehow ये words तो appear कर ही जाते, either in the option or as an exclusive question. So it's a very important set. Please note it down, right? So affect is to influence, right? So when we talk about this word affect, it is used as a verb, right? So the poison affected the hero. Please see, I've made a sentence also for this particular case ताकि आपका understanding better हो. So वहाँ पे the poison affected, influenced, यानी वहाँ पे affect का usage कैसा है? As a verb, right? तो verb are the verb क्या होता है? Action word होता है. Now let's come to effect. Effect क्या है? Result. So here this effect is being used as a noun, right? So this is a result. So when we talk about effect, so after effects of marriage, right? So effects is basically a result, right? So with E, if the word is beginning, then it is used as a noun,
right? Affect, which is starting with a, which means to influence, and that is used as a verb, right? So इसको जरूर अपनी नोटबुक में लिख लेना, there's a good possibility से क्वेश्चन आ जाए, right? कहीं ना कहीं आपको जरूर दिखेगा ये सवाल, right? So now let's come to the next word, allusion and illusion. तो allusion क्या होता है? ये एक figure of speech होता है. फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है? फिगर ऑफ स्पीच आर सर्टेन स्टाइलिस्टिक एलिमेंट्स जो यूज किए जाते हैं टू मेक द लैंग्वेज इफेक्टिव. तो ऑथर अपने आइडिया को इफेक्टिवली और इन्फ्लुएंशियल तरीके से प्रेजेंट करने के लिए फिगर ऑफ स्पीच यूज करता है. जैसे सपोज आप किसी को बोलते हो यू आर ब्यूटिफुल, और अगर आप किसी को बोलते हैं you are a rose or you're as beautiful as a rose. So when you're saying you are a rose, आप metaphor use कर रहे हो, direct comparison कर रहे हो. When you say you are as beautiful as a rose, you are using simile. तो इसको figure of speech कहते हैं. Similarly, allusion एक figure of speech है जो एक indirect reference देता है. जैसे अगर आप अपने फ्रेंड को कहो तू अपने आप को सलमान खान समझता है क्या, तो indirect reference है, इसको आप allusion कहते हैं. और illusion क्या होता है? भ्रम, right? So what is illusion? A false perception of reality, a dream, something which is not true, right? I hope I have explained you well. So बहुत आसान तरीके से retain कर सकते हैं allusion and illusion. तो allusion is a figure of speech which is an indirect reference, and illusion is something which is a false perception, not real. Okay? Let's come to the next. Now these are again very commonly tested words and very commonly seen words also. Amiable and amicable, और कई जगह हम interchangeably भी use कर लेते हैं. कई cases में इनको synonyms भी आपको कोई कह सकता है, but there is yet some difference in both these words. तो जो पहला word है amiable, that means you are friendly, and amicable means you are lovable, right? Harmonious. तो जो एमिएबल है वो है जब आपका बिहेवियर फ्रेंडली, और एमिकेबली झगड़ा सुलझा लो, पीसफुली, हारमोनियसली, राइट, इन एन अफेक्शनेट वे. तो उस केस में आप एमिकेबल यूज करते हो. तो आई वॉन्ट एन एमिकेबल रेजोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम. दैट मीन्स बिना लड़ाई झगड़े के, बिना हाथापाई के ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, तो वो एमिकेबल है, हारमोनियसली. और लोग एमिएबल हैं इसलिए एमिकेबल सोल्यूशन हो गया, राइट? सो आप एक सेंटेंस में अगर मैं दोनों को यूज करूं, द पीपल वर एमिएबल, हेंस द मैटर गॉट रिजॉल्व्ड, या मैं सीधा ही लिख देता है मैटर रिजॉल्व्ड एमिकेबली. ठीक है? सो दैट्स हाउ यू यूज्ड इट. सिंस पीपल वर फ्रेंडली, दे वर एबल टू रिजॉल्व द मैटर इन अ हार्मोनियस वे, राइट? अब तो आप नहीं भूलोगे, आई एम श्योर, राइट? सो दिस इज हाउ क्लोजली रिजेंबलिंग वर्ड्स आर सीन इन द एग्जाम. जैसे अगर मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन दूं, अब आप देख रहे हो कैसे कंफ्यूजिंग चॉइसेस क्रिएट कर दी. I dash you to dash your bad habits. So take a quick 30 seconds and solve this question very quickly. अभी मैंने आपको बताया था adjure और abjure, right? So one word means to request sincerely, and other word means to disown. So प्लीज सी विच चॉइस विल फिट इन. अगर आप एक भी मीनिंग को याद कर पाए तो आप क्वेश्चन को क्रैक कर लोगे. सो प्लीज सी एडज्योर, आई रिक्वेस्ट यू टू लीव योर बैड हैबिट्स, राइट? ऐसा आप सेंटेंस बनाओगे तो रिक्वेस्ट. सो एडज्योर, एडज्योर इज द वर्ड, राइट? और एब्ज्योर होता है डिसोन करना. तो अबोर का मतलब क्या होता है? हेट्रेड. तो ऐसे बड़ी सिमिलर चॉइसेस आपको दे देते हैं which in exam might look intimidating, और आपको कॉन्सेप्ट टेस्ट कर जाते हैं. तो अगर आपको पता है कहाँ पर वर्ड प्लेसमेंट होगा, यू विल बी एबल टू मैनेज. सो लीव का मतलब एब्ज्योर करना होता है. सो द करेक्ट आंसर चॉइस विल बी चॉइस डी. ठीक है, चलिए लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. प्लीज ट्राई दिस. The applicant's character sounded a bit dash, hence the manager was dash about offering a job letter. So ambiguous is unclear, ambivalent is having mixed emotions, upfront, loud and upfront, or ambidextrous, a person who can use both the hands effectively, right? तो अब मैनेजर को कैसी फीलिंग आ रही होगी?
कैरेक्टर साउंडेड अ व्हाट, एम्बिगुअस, दिस सूट्स वेल कि हाँ अनक्लियर था कैरेक्टर, तो ही वॉज नॉट श्योर, ही वॉज हैविंग अ मिक्स्ड फीलिंग्स अबाउट ऑफरिंग अ जॉब लेटर, राइट. सो वी कैन कीप दिस, राइट. एम्बीडेक्स्ट्रस तो मैच ही नहीं करता, अफ्रंट और मिक्स्ड फीलिंग्स, कैरेक्टर की तो मिक्स्ड फीलिंग्स नहीं हो सकती, राइट. सो इवन बी गोज आउट. सो व्हाट इज द वैलिड ऑप्शन दैट वी कैन पिक अप हियर, दैट विल बी चॉइस ए. Now here I have tested you on affected and effect. Like I told you, that's something which is very very crucial from exams point of view. अब देख लो इसी तरीके से आपको questions frame करके मिल सकते हैं. Maybe they can slightly tweak the way the question is presented, but more or less you have to see how it works. तो the poison dash the prisoner, तो यहाँ पे आप clearly समझोगे कि यहाँ पे तो verb चाहिए, right. You need a verb here. So the word starting with a is a verb. So affected, right. अब इसी के basis पे आपने b और c eliminate कर दिया, right. And the effect of poison, तो यहाँ पर आपका असर, जैसे मैंने आपको बताया था ना शादी के साइड इफेक्ट्स, सो दिस इज द वर्ड, राइट. सो रिजल्ट, सो द रिजल्ट ऑफ पॉइजन वाज लाइफ टेकिंग. सो रिजल्ट के हिसाब से भी वी विल हैव ए एज एन आंसर. अपैथी इज द फीलिंग ऑफ इनडिफरेंस, राइट. जब आपको किसी से कोई लेना देना नहीं होता, यू कैन नॉट फील फॉर अदर्स, और यू आर इनसेंसिटिव, और यू आर इनडिफरेंट, राइट. सो आप बोलते हो अपैथी. Now let's see the next two sets. So ascent and ascent. So when we talk about ascent, this is to climb. तो आपने कई जगह देखा होगा कि the plane is climbing up. So the plane's ascent is this, right? How far it has climbed, right? Moving to a higher altitude. So fighter planes ascent made my ears pop. मतलब जब ऊपर आते तो कान में, I'm sure आपने फ्लाइट ली होगी तो वो अजीब सी साउंड आती है. तो दैट्स व्हाट द सेंटेंस इज ट्राइंग टू से. और एसेंट क्या होता है? कंसेंट, जैसे बोलते हैं ना इन अग्रीमेंट. तो एसेंट इज अगेन वेर यू आर शोइंग योर अप्रूवल और अग्रीमेंट, राइट. सो अगेन वेरी स्मॉल डिफरेंस, और प्रोनाउंसिएशन भी मोर और लेस सेम रहती है, तो इसलिए स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं. बट मैन इफ देयर इज अ सी, देन यू कैन एसोसिएट. ओके, सी इज टू क्लाइंब, ठीक है. एंड वेर इज डबल एस इन द स्पेलिंग असेंट, सो दैट्स टू अप्रूव, राइट. चलिए, so let's further see what is the next set. कैपिटल वर्सेस कैपिटल. तो यहाँ पे देखिए ए और ओ. तो ये वाला कैपिटल तो आई एम श्योर आप मल्टीपल मीनिंग से समझते होंगे. कैपिटल कैन बी द इनिशियल इंटरेस्ट, मनी दैट यू आर ब्रिंगिंग इन द बिजनेस, राइट. यू नीड कैपिटल टू स्टार्ट योर बिजनेस, राइट. इट कैन बी कैपिटल लेटर जे, मैंने लिखा अपने नाम पे, सो दिस इज द कैपिटल लेटर. और यू कैन ऑल्सो यूज इट लाइक दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, राइट. तो ये कैपिटल तो आप समझ गए. अब उसके बाद जब ओ वाली स्पेलिंग आती है, तो जैसे फॉरेन कंट्रीज में इस टर्म को यूज किया जाता है टू टॉक अबाउट अ बिल्डिंग वेयर मेजर डिसीजंस एसोसिएटेड विद गवर्नेंस आर टेकन. तो जैसे हम पार्लियामेंट बोलते हैं, वहां पर वो कैपिटल. सो वेयर लेजिस्लेटिव मीटिंग्स आर हैपनिंग, द गवर्नर अनाउंस हिज रेजिग्नेशन इन अ स्पीच गिवन एट अ कैपिटल टुडे. So this is a place where legislative meetings are happening. So it's a building sort of a thing, right? So I'm sure अब आप समझ गए हो. कैपिटल के तो multiple meanings पता है. With O it refers to a place, right? A building where legislative meetings are happening, right? So that's the difference between these two words. Now conscience and conscious. So when I say conscience, मेरी अंतरात्मा की आवाज मुझे कहती है चीटिंग मत करो. So right, so it's a sense of right and wrong. So that's where you use this word conscience. और conscious होना, aware, ठीक है, awake होना. So the girl became unconscious, so unawake, तो वो बेहोश हो गई. That's how you use the terms, right? So I was conscious when the burglar entered. So I was awake, right? I was conscious, when the train hit some animals, whatever, right? So that's how you use it. Censure and censor. When you talk about the first word censure, that means you're showing very strong disapproval. Strong term है disapproval, rejection का idea देती है, right? So जब आप the manager censured his employees for coming late every evening, तो बहुत manager ने डांट लगाई कि तुम late आते हो. So very strong, very strong. Please see, it's not disapproval, it is strong disapproval. और censor तो आपने देखा होगा कि censorship board ने, जैसे एक फिल्म रिलीज हुई थी पद्मावत, तो
उसमें सेंसर बोर्ड ने क्या किया था, सो दीपिका पादुकोण प्लेड द कैरेक्टर ऑफ रानी पद्मावती, तो फिल्म का नाम भी पद्मावती से पद्मावत कर दिया गया था, राइट। एंड देयर वर सर्टेन सीन्स वेयर हर वेस्ट वाज बीइंग शोन इन डांसिंग, सो दैट वाज कवर्ड, या फिर कई ऐसे सीन्स को हटाई देते हैं विच आर ऑब्जेक्शनेबल, सो दैट्स व्हाट सेंसरशिप बोर्ड डज। इट कैन ऑल्सो बी इम्प्लीमेंटेड इन बुक्स ऑल्सो, और सर्टेन लिरिक्स ऑफ songs which are unpleasant or should not be done, so censorship board hota hai. So this censor is to stop or prohibit something which is wrong, eliminating or editing or removing a part of a movie which is, or a book or a song which is, you know, not you know right for the society, तो उस ग्राउंड पे, और सेंश्योर द फर्स्ट वन इज अ स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल, किसी को बुरी तरह से डांटना, ठीक है। चलिए, सो देयर इज दिस वन क्विक क्वेश्चन फॉर यू, डू दैट। So a famous philosopher has said that one must be aware. So aware होना क्या हो गया? Aware of your conscience, inner sense of understanding of what is wrong and what is right, right? So please see, aware ठीक है यहाँ पे, तो आप aware का रख सकते हो, but gloom is sadness. तो ये कई बार हम केवल एक चॉइस देख लेते हैं, तो लेट्स ऑलवेज इंश्योर दैट वी आर चेकिंग ऑन बोथ द ब्लैंक्स, सो ग्लूम विल नॉट वर्क। अगेन कॉन्शियस ए और सी दोनों जगह इज फाइन, बट कंसेप्शन इज नॉट वर्किंग हियर, राइट। कंसेप्शन इज हाउ द आइडिया ओरिजिनेट्स, सो दैट्स नॉट वर्किंग, सो द करेक्ट चॉइस विल बी ए। तो इस तरीके से जस्ट डोंट बी डिपेंडेंट ऑन वन ब्लैंक, देयर कैन बी केसेस जहाँ एक ब्लैंक के बेसिस पे सवाल निकल आए, यू हैव टू सी द ऑप्शंस एंड एक्ट अकॉर्डिंगली, राइट। अब अगर आपको इस तरह से चॉइसेस दिख रही है तो इनकरेक्ट को एलिमिनेट करते जाओ एंड रीच टू द राइट वन, राइट। सो when we talk about discrete and discrete, so जो CRETE होता है which means separate, right, और जो पहले discrete होता है, so careful, not to attract attention or give offense, so the manager was very discreet in giving the feedback, right। और discrete, ये वाला देखिए separate, so there is a discrete batch for students who are pursuing MBA, right। So this is how a separate batch, so this discrete is separate, and the first discrete is whenever whatever you are communicating, you are ensuring that, you know, that is not unnecessarily asking for attention or, you know, giving offense to somebody, so that is how we use the first word discrete, DISCREET, right। So that's it. So we have learned quickly some 20 words and very important words. So please ensure that you revise them once or twice. And I'm sure you're going to remember them. Take good care of yourself. Work very, very hard. All the best.